Hi students, welcome back to my channel again. Continuing with the basic biology, the cell. Now we are proceeding with the cell organelles, right? Under cell organelles, first of all, cell wall present in plant cell, absent in animal cell. Cell wall, it is the non-living, it is made up of cellulose and it freely permeable. It is freely permeable. Cell wall, outer covering of the plant cell, it is non-living, it is non-living, made up of cellulose, and its main function, it provides rigidity, means it's able to bear the stress and the strain. सेल वॉल आउटरमोस्ट लेयर है, ये नॉन लिविंग होती है, ये फ्रीली परमेबल, मतलब कोई भी चीजें इसमें बाहर आ जा सकती है, रोड पे। और कॉमन नॉन, जब दो सेल्स एक दूसरे अटैक्ट होते हैं तो इसके बीच में एक मिडिल लैमेला, ऐसे ये सेल वॉल ये है, ये सेल वॉल एक है, इसके बीच में जो ये सेल वॉल आती है, दिस इज कॉल्ड मिडिल लैमेला एंड दिस इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। इससे क्या होते हैं, सेल्स आपस में टाइटली होल्ड अप रहते हैं, इससे सेल्स आपस में टाइटली होल्ड है। मिडिल लैमेला, इट इज अ पार्ट ऑफ सेल वॉल ओनली, दैट इज कॉमन फॉर बोथ द सेल्स। और ये जो मिडिल लैमेला की थिकनिंग होती है, ये जो मिडिल लैमेला है, ये जो होता है, ये पैक्टिन का बना होता है। दिस इज मेड अप ऑफ पैक्टिन that joins the cell and gives the mechanical support to the cell. Properly, the support is given mechanical support by the cell wall, but it is not present in the animal cell, right? Now the next we come to the next cell organelle, important cell membrane. All the plant cell, animal cell, they are bounded by a thin membrane that is called the cell membrane. Cell membrane, it is living. Cell wall, non-living. Cell membrane, it is a living. And this cell level membrane, that is made up of lipids and protein. Internally, you can see the structure over here, that is made up of the phospholipid layer. These are two phospholipid layers, they are binded together. These two phospholipid layers, they are only known as cell membrane. And in between, you can see the proteinaceous structures are present, in which passage, this is the cytoplasm present, this is the outer one, and through here cytoplasm, the entry and exit. It is selectively permeable. Only the things which the cell wants, which are useful for the cells, only they are able to enter inside the cell, and the things which are harmful for the cell, they don't get entry over there from the cell. These specific proteins they have, they are selectively permeable. That's why it is known as outermost covering of the animal cell as well as the plant cell. Animals as well as the plants also. They provides and maintains the shape, regulates the transport of materials in and out. Means taking in and giving out of the material. Substances which are useful for the cell, they are entered through the cell membrane, and if the substances they are harmful to the cell, इस सेल में अगर उसके लिए सब्सटेंसेस लाभदायक होंगे तब तो वो सेल के अंदर जाएंगे, और अगर हानिकारक होंगे तो वो सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज selectively permeable membrane that regulates the entry and exit of the various materials inside and outside the cell. Cells, animal cell, completely या plant cell, इसमें भी जो है transportation हर एक substances का नहीं होता है। I hope it is given. It is two phospholipid layers. They are compactly bounded by the sandwiched within each other. That is the lipids are there. They are the proteinous material. These protein, ये जो लिपिड्स होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन एनलार्ज होकर के यहाँ पर ये पैसेज बनाते हैं बाहर आने और जाने का। इसके अंदर इधर साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे दूसरा सेल होगा, राइट? सो दे एंट्री प्रिवेंट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सेल, राइट? नाउ द नेक्स्ट ईयर आपका सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल देते हैं। अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। Cytoplasm, it is a part of a protoplasm only, as I told you already. This protoplasm is a mixture of various organic and inorganic carbohydrate, protein, fats, minerals, they are present over there, and they form
the various 46%, 24%, and the various in there. It is the sol in a sol and gel. Sol means soluble, the fluid state, liquid state, तरल पदार्थ होता है वो सॉल. जेल यानी सेमी सॉलिड, मतलब ये जो जेल लाइक सब्सटेंस सेमी सॉलिड हो जाता है जब उसमें मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और सारे ऑर्गेनेल्स इस जेल में अंदर धसे हुए होते हैं. दे आर एम्बेडेड, धसे, जैसे ये जेल लाइक सब्सटेंसेस है. आप जैसे आप कहेंगे सेल है, जैसे आप आटा धीरे बने, उसके अंदर जो धसे हुए पदार्थ होंगे, जैसे ये है, इसके अंदर जो से काट के थोड़ा अंदर डाल दिया, फिर यहाँ पर ये ऑर्गेनेल, ये ऑर्गेनेल, ये ऑर्गेनेल, अलग अलग ऑर्गेनेल्स दे केप्ट, दे कीप फुली एक्सपेंडेड एंड दे प्रोवाइड टर्जिडिटी. प्रोटोप्लास्ट जिससे कि सेल फूला हुआ रहता है, अपने शेप को डिवेल्प करता है, शेप को मेंटेन रखता है. अगर वो शेप को मेंटेन नहीं रखेगा तो उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे. सारे सेल ऑर्गेनेल्स ठीक से काम कर सके इसलिए उसकी गति, इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल, मीन्स द फैक्ट दैट इट मीन्स वो एक्सपेंडेड, फूला हुआ रहे, टर्जिड सेल कंडीशन रहेगी, तभी जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उसमें वो सही तरीके से काम कर पाएंगे. नाउ द मेन एंड इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट in the cell, the next one, that is the nucleus. बिना न्यूक्लियस के सेल के एक्सिस्टेंस हो जाए. एनिमल सेल में सिर्फ आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है और प्लांट सेल में फ्लोएम सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता है. फ्लोएम के जो सेल्स होते हैं उसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. बाकी जितने भी सेल्स हैं सभी में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन वेयर इट इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ईच एंड एवरीवेयर सेल ऑफ द सेल, एंड इट इज द फ्लोएम के सीव ट्यूब्स जो होते हैं उनमें नहीं होगा और ह्यूमंस के आरबीसीज में ये न्यूक्लियस नहीं होता. बाकी जितने भी प्लांट और एनिमल सेल हैं सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज, सेल ऑर्गेनेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल. अगर न्यूक्लियस को आप टी सेक्शन देखें तो न्यूक्लियस इज द लार्ज एंड प्रोमिनेंट. न्यूक्लियस के अंदर एक राउंडेड बॉडी और प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. इसमें आरएनए प्रेजेंट होते हैं. इसका फंक्शन होता है राइबोसोम्स का फॉर्मेशन, इससे राइबोसोम्स बनते हैं. इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम. न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल. न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है और न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल्स की एक्टिविटी कंट्रोल करता है. और न्यूक्लियस के सराउंडेड थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसे हम क्रोमोटिन थ्रेड्स कहते हैं. क्रोमोटिन थ्रेड्स, they are made of thread like structures known as chromosomes. Chromosomes are made up of DNA and RNA. DNA, deoxyribose nucleic acid. DNA, that is called deoxyribose nucleic acid, and RNA is known as ribose nucleic acid. It is known as ribose. Ribose nucleic acid. And DNA it is known as deoxyribose nucleic acid. Nucleic acids basically protein. Deoxy में deoxyribose sugar होती है, इसमें ribose sugar. Nucleic acids एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये डीएनए में होते हैं. इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए में. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, इसमें थायमिन प्रेजेंट होता है, इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है. तो ये इसके अंदर क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं. जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. जीन्स होते हैं, जीन से ही क्रोमोसोम डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनसे हमारे कैरेक्टर्स पेरेंट से औसत है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन. ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स टेक्स प्लेस थ्रू दिस क्रोमोसोम. जब सेल होते हैं क्रोमोटिन मटेरियल बढ़ता है, ग्रो करता है, उसके बाद ये डिवाइड होता है, इससे न्यूक्लियाई डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड होंगे और फिर ये दो पार्ट में डिवाइड होता है. इसके बाद फ्लूइड जो इस पूरे में भरा होता है उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट. तो प्रोटोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट प्लस साइटोप्लास्ट टुगेदर इट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट. जो न्यूक्लियस के अंदर जो कोलाइडल सब्सटेंसेस हैं वो है न्यूक्लियोप्लास्ट, जिसमें कि ये स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड होते हैं. आई होप इट इज क्लियर.
Nucleus, it contains of the nuclear membrane, nuclear pore, nucleoplasm, float thread inside, rounded structure is nucleolus, thread-like structure is known as chromatin. Chromatin threads, they contain DNA and RNA. DNA is deoxyribose nucleic acid. RNA is known as ribose nucleic acid. They contains genes. Genes are responsible for the transmission of hereditary characters from one generation to the other. इन्हीं जीन से जो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन है. बीच में आपको हम हेरिडिटी पढ़ाएंगे, देन आई विल टेल यू डिटेल अबाउट द जीन. So that is what all about the nucleus. So we have studied here today cell wall, cell membrane, cytoplasm and nucleus. Now in the next video I will continue with the other cell organelles of the cell. Thank you. Again we will meet in the next video.